So today we will discuss about LCR circuit. What is LCR circuit? A circuit which has inductance, capacitor and resistor connected. But why do we use it? Okay, a circuit which is in which we have inductance, capacitor and resistance. Resistor. All the three are connected. Now what is the use of this circuit? Okay, LCR circuit used for various purpose, but one of the application you can understand, that is the your tuning circuit. Tuning circuit means radio station. What happens when we tune our radio, suppose 98.3 FM, okay, so when we want to catch a particular station, then inside there is a LCR circuit, okay, for a particular frequency. That circuit accept the signal, okay, and it allows to pass through. That is, LCR circuit can be used as a acceptor circuit. It accepts one signal out of many signals. That is one of the use. When inductance, capacitor and resistance connected in series, then it is called series resonant circuit. Okay, and this LCR circuit can be used as a rejector circuit also. We call it parallel resonant circuit. Means capacitor is connected with the inductance resistance in parallel. In one branch we have inductance and resistance, in the other branch a capacitor is connected in parallel. Now the application of parallel resonance circuit is used as a rejector circuit. You know karaoke? Yeah. Karaoke you have understood? So karaoke, what happens, everything is present, all the background musics are present except the voice of the singer. Now how do we do it? How we can omit, how we can nullify the voice of the signal and allow the background sound to come? What happens? We detect the singer voice. What is the frequency of the voice? The singer will have a particular frequency. Okay. Every sound signal has a particular frequency. Okay. So we detect what is the frequency of the singer voice, and we reject that particular frequency and allow all the other frequencies to go through, and we allow, this is called filter circuit. So we can reject one of the signal out of many signals that is coming to the circuit. Okay, so this LCR circuit, when it is a parallel resonant circuit, can be used as a rejector circuit. So both for radio tuning circuit we use it as a resonant circuit, series resonant circuit, and in karaoke sort of thing we can use this as a filter, okay, for rejecting one signal out of many signals, both. So let us try to understand what are the components of LCR circuit and how it is used. So as you know, LCR circuit means we have inductance, we have capacitor and we have a resistance. Okay, so these are connected in series with the alternating source. This is the alternating source of voltage. Okay, so this is a self induction of the solenoid, inductance, this is the capacitor and this is resistance. Now some of the basic thing you should know, that the applied instantaneous EMF, suppose E equal to EP sin omega t. This is the sinusoidal alternating EMF which is connected with the LCR circuit. What does EP stand here? EP means the peak value of EMF. Sometimes in book, in other books it may be written as E0, like this. E0 means the peak value of EMF. See, this EMF, alternating EMF, varies with time. So when sin omega t is +1, then this EMF is maximum. The amplitude of this alternating EMF varies with time.
So the maximum value of EMF on either side, either in the plus sign or in the negative sign, that is called the maximum amplitude of this EMF. That is the peak value, the maximum value of EMF. Okay. So this is our applied AC, applied EMF in the LCR circuit. Okay. Now, what is the potential drop across inductance? It is L into di by dt. Okay. What is the potential drop across capacitance? Q, charge in the capacitor is capacitance into potential. So potential is equal to Q by C. Correct. So potential drop is Q by C. And what is the potential drop across the resistance? I into R. I is the current into R. Now, in inductance, the current lags the EMF by 90 degree. Okay, in AC circuit, there are two parameters. One is your EMF and other is the current. So, in resistance, current and EMF both are in phase. They proceed simultaneously. When current reaches maximum, EMF reaches maximum. But in inductance, the EMF leads the current by 90 degree. Okay. Whereas in capacitor, the EMF lags the current by 90 degree. So we can say in other word also कि कैपेसिटर C से स्टार्ट होता है, तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है ईएमएफ से कितना 90 डिग्री. सो करंट आगे रहता है 90 डिग्री. ठीक है, करंट आगे आगे रहेगा और ईएमएफ 90 डिग्री पीछे रहेगा. ओके. सो अगर कैपेसिटर में करंट लीड करता तो इंडक्टेंस में जस्ट ऑपोजिट करंट लैग करेगा ईएमएफ से. सो व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन? वेरी सिंपल. पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस L di by dt plus potential drop across the capacitor plus potential drop across the resistance is equal to total EMF applied EP sin omega t. This is the EMF equation of this circuit. Now, if we want to find out the current in this circuit, then we have to solve this differential equation. Okay. In your standard, you have a mathematic called differential equation. You can use differential equation method and solve this. There are other ways also to solve this equation. One is J operator method, other is vector diagram method. Okay. So we will use the most easiest method to solve this equation, that is the vector equation method. Okay. So let us represent this is our x-axis. This represents the direction of current. Okay, x-axis represents the direction of current. So if this is the direction of current, so potential here, that is the potential and current in a resistance, they are in phase. So potential difference across the resistance and EMF, potential difference and current across the resistance will be in the same directions. Means the potential drop across the resistance, if we represent it as VR, that is equal to I into R, this will be along x-axis. Why? Because potential and current both are in the same phase. Okay. So EMF leads the current by 90 degree. Okay. So if this is the x-axis is the direction of current, then the potential difference across the inductance will be along 90 degree away. Leading means what? It will be along y-axis. Okay. So suppose I can extend it like this. This is our y-axis. So suppose this particular parameter O, say OA, this represents the potential difference across the inductance, that is the VL. Okay. VL. VL is what?
potential difference across inductance. Why it is along y-axis? Because it is, if current is along x-axis, then EMF will be, potential drop across inductance will lead the current by 90 degree. That is why this is I into the resistance offered by inductance is called inductive reactance. Okay, it is represented by XL. Now what is XL? XL is called the inductive reactance, resistance offered by inductance, inductive reactance. How much it is? Omega into L. What is omega? Omega is the angular frequency of the alternating voltage which you have connected. Correct? Okay. Now, what about capacitor? In capacitor, the EMF lags the current by 90 degree. So, if the direction of current is this, then the potential drop across the capacitor will lag. Lag means along y dash axis. Suppose OB. OB is the potential difference across capacitor, VC. Okay. This is equal to how much? Current into XC. What is XC? XC is capacitive reactance. That is the resistance offered by capacitor to the flow. That is called capacitive reactance. So earlier we have solved already LR circuit, CR circuit, only capacitor circuit, only inductance circuit. So there we have seen that the resistance offered by the capacitor is given by 1 by omega C. करेक्ट? ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है. देखो ये इंडक्टेंस क्या करता है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है. That is directly proportional. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. व्हेयरएज कैपेसिटर में उल्टा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ऑल्टरनेटिंग सोर्स का तो ये कम होगा. Inversely proportional. Inversely proportional. Okay. So now, so this is lagging, means potential drop across this. Now this is a 3 vector. There are 3 vectors. One is along this, other is this and this. So these 2 vectors are 180 degree away, mutually opposite. Okay. So we can find out the resultant of these 2 vectors by simply subtracting it. चलो IXL मान लो ज़्यादा है तो इन दोनों को subtract करने से OA minus OB करने से suppose मेरे पास E आ रहा, ठीक है. This is suppose OB आ रहा. This is what? VL minus VC, ठीक है, OD. ये दोनों वेक्टर को subtract करने से ये मिला OD. अच्छा, अभी मेरे पास 2 ही वेक्टर बचे. 3 वेक्टर में से अभी 2 वेक्टर हो गया, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर. ओके. सो दिस वेक्टर इज, सो अभी इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर, ठीक है. तो इसको और इसको मिला के एक पैरेललोग्राम, तो इस केस में 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल बन रहा मेरा. सो दिस इज द पैरेललोग्राम. नाउ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट. 2 वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे मिलता है? You complete the parallelogram by taking the 2 adjacent vectors as its sides, then the diagonal of the parallelogram represents the resultant vector. ठीक है. So ये हो गया resultant EMF in the LCR circuit. ये suppose इसको मान लो OF नाम दिया है ना. मैं पर्पसफुली C यूज नहीं किया, E यूज नहीं किया, बराबर, क्योंकि C से कैपेसिटेंस इंडिकेट हो रहा है, E से EMF इंडिकेट हो रहा है. सो OF रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट EMF इन द LCR सर्किट. सो व्हाट इज इट? देखो, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है? करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस, ठीक है. तो ये जो कॉम्बिनेशन तीनों मिलके जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसका एक टेक्निकल टर्म है इम्पीडेंस, ठीक है. इसको G से डिनोट किया जाता है. तो व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल? रिजल्टेंट I into Z. What is IZ? This is the resultant EMF in this LCR circuit. ये कितना होगा? तो ये तो ट्रायंगल है, अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सो OF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर, ठीक है. OF स्क्वायर
इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। तो OF कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ OA स्क्वायर, OA मतलब IR स्क्वायर, IR का स्क्वायर प्लस AF, AF मतलब क्या, OD ना, VL माइनस VC, VL माइनस VC, ठीक है। सो व्हाट इज OF, I इंटू जेड, इसको थोड़ा लिख देते हैं, ये I स्क्वायर IR का स्क्वायर प्लस VL, VL मतलब कितना था, ओमेगा एल, I इंटू ओमेगा एल, ठीक है, I इंटू XC, XL, दैट इज I इंटू ओमेगा एल माइनस I इंटू XC, XC मतलब कितना हो गया, ओमेगा C। देखो इसमें I इधर भी I है तो I कैन बी टेकन आउट, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इस I से कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट विल गेट हियर, Z इक्वल टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा C स्क्वायर, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड by LCS circuit to the flow of AC। इसको क्या कहा जाता है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस ऑफ द LCS सर्किट। अभी डिस्कशन अपना चालू होगा यहां से, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट EMF है इसका फेज एंगल क्या होगा, चलो ये तो मैग्नीट्यूड में समझ गया कि I इंटू जेड है, तो दिस इज व्हाट इज द रिजल्टेंट EMF। व्हाट इज द फेज, जो रिजल्टेंट करंट है वो है I, ठीक है। EMF का फेज एंगल है ओमेगा टी, तो रिजल्टिंग करंट जो LCS सर्किट में दौड़ रहा है उस रिजल्टेंट करंट और रिजल्टेंट EMF के बीच में फेज एंगल क्या होगा, क्या करंट लीड करेगा, कितना एंगल में लीड करेगा, करंट लैग करेगा तो कितना एंगल में लैग करेगा। सो दिस गिव्स द रिजल्टेंट। तो अभी देखो डायरेक्शन इसका OF है, तो सपोज इट मेक्स एन एंगल फाई, ठीक है। तो tan फाई कितना हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू P बाई बी, मतलब AF बाई OA, AF मतलब VL माइनस VC बाई IR, VL कितना है I इंटू XL, XL मतलब ओमेगा एल माइनस VC मतलब I इंटू XC बाई I इंटू R, I कैंसिल आउट, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज फाई, फाई इक्वल टू tan इनवर्स, tan लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इनवर्स हो गया ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बाई आर, दिस इज इक्वल टू आवर फेज एंगल। तो अभी LCS सर्किट में हमने क्या देखा कि टोटल इंपीडेंस ऑफर्ड इज दिस मच एंड द रिजल्टिंग करंट, ओके, उसका फेज एंगल हो गया फाई, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी बाई आर। नाउ अभी फेज एंगल क्या होगा ये डिपेंड करता है कि सर्किट में किसका डोमिनेंस ज्यादा है, ओके। अगर ओमेगा एन ज्यादा है तो इट विल बी इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। तो हम एक एक केस स्टडी करेंगे। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी जेड इम्पीडेंस, और बाकी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी कैन रब इट, ओके। ये भी हो गया। फेज डायग्राम ऑल्सो यू अंडरस्टूड, दिस इज द वेक्टर मेथड फॉर सॉल्विंग AC सर्किट, ओके।
सो एक केस ये हो गया, केस 1। केस 1 क्या है कि ओमेगा एल इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा सी। तो डोमिनेंस किसका होगा? इंडक्टेंस का ज्यादा होगा। तो इंडक्टेंस में क्या होता है? ईएमएफ लीड करेगा, ठीक है। तो ईएमएफ विल लीड द, ओके, यानी कि ईएमएफ, ये तो ईएमएफ अप्लाइड ईएमएफ है, तो करंट जो है ना, अगर ईएमएफ लीड करेगा तो करंट लैग करेगा, तो ओमेगा टी माइनस फाई एंगल से करंट दौड़ेगा इसमें, ठीक है। तो इट विल बी इंडक्टिव सर्किट। हाँ, अच्छा, सो इट विल बी इंडक्टिव सर्किट एंड इसके में क्या होगा? करंट विल लैग द ईएमएफ बाय फेज एंगल फाई। सो करंट lags EMF by phase angle phi, and phi is given by that, okay. Case 2, suppose omega L is less than 1 by omega C, तो क्या होगा? इसका डोमिनेंस ज्यादा है, इट विल बी कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटर का डोमिनेंस, इसमें तो फेज करंट एंड ईएमएफ फेज, इसमें क्या करंट लीड करेगा, सो करंट विल लीड द EMF by phase angle phi, okay. So in this circuit, this is a capacitive circuit, and current leads EMF by phase angle phi, ठीक है। Most interesting part is when both are same, means the resistance offered by inductance and the resistance offered by capacitor are same, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखो दोनों का जो रेजिस्टेंस है ना, इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस बोलो, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है, ये केवल इसका कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जो हमने लगाया अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी वोल्टेज, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा फ्रीक्वेंसी मैं अगर चेंज करता रहूं, अभी फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग सोर्स से कैसे चेंज किया जाता है? फिजिक्स लेबोरेटरी में वी हैव अ फंक्शन जनरेटर डिवाइस, ठीक है, उससे आप तुम ट्यून कर करके जो है ना उसका फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। तो जैसे ही तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ऐसा हो सकता है कि केस 3 कि ओमेगा एल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। इस केस में क्या होगा? The resistance offered by inductance and resistance offered by the capacitor are same for a particular frequency. उस केस में क्या होगा? देखो ये जीरो हो जाएगा, अगर ये जीरो हो जाएगा तो it will be purely resistive circuit, ये जीरो हो गया तो it is purely resistive circuit, ठीक है। and impedance is minimum, ये Z का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? कुछ भी होगा, अगर ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा, स्क्वायर के ऊपर आके जेड तो कुछ ना कुछ ज्यादा ही होगा। इसका सबसे मिनिमम वैल्यू वही हो सकता है कि अगर ओमेगा एल एंड 1 बाई ओमेगा सी सेम है, ये टर्म अगर जीरो है तो इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द एलसीएस सर्किट विल बी मिनिमम, और अगर इम्पीडेंस मिनिमम है तो करंट उस सर्किट में क्या होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। इसको कहा जाता है रेजोनेंस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस उसको कहा जाता है जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में करंट इस सर्किट में मैक्सिमम हो, उसको क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, तो इस केस में अगर ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी है, तो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी, ठीक है। ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इज 1 बाई रूट ओवर एल सी, और किसी किसी जगह पे ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई एफ इज इक्वल टू, दिस इज द फ्रीक्वेंसी 1 बाई रूट ओवर एल सी, और एफ इक्वल टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर एल सी। दिस इज कॉल्ड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओके। तो इस अगर
ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी को मैंने ऐसा सेट किया कि इसके बराबर है √1/रेसिप्रोकल ऑफ √LC हुआ, तो उस समय क्या होगा, इम्पीडेंस ऑफर्ड विल बी मिनिमम एंड द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। तो जब करंट मैक्सिमम होगा उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस हैज ऑकर्ड। अभी देखो, अभी इसका यूज कैसे होगा, हाउ विल यू यूज दिस, हाउ दिस LCR सर्किट हेल्प्स अस। मान लो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अभी एट ए टाइम बहुत सारे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को जैसे एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में वो पकड़ता है, वो पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन पकड़ता है। कैसे पकड़ता है, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे सिग्नल था, सभी रेडियो स्टेशन का सिग्नल आ रहा, तो हम जब वो जो ट्यून करते हैं ना, जब नॉब को हम घुमाते हैं तो उस समय क्या हो रहा, मेरा फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो रहा, ठीक है, और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही वो मैच करेगा, इस फ्रीक्वेंसी में मैच करेगा, एंड देन सर्किट में करंट फ्लो होगा, मैक्सिमम होगा, और उस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा, और वो सर्किट में क्या हो जाएगा, जैसे वो उसको एक्सेप्ट, तो दैट रेडियो स्टेशन हम प्ले कर सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी में सर्किट में करंट मैक्सिमम होता है। अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करके इसको दिखाने की कोशिश करता हूं, चलो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक तरफ मेरा फ्रीक्वेंसी प्लॉट किया और एक तरफ करंट प्लॉट किया, ठीक है, करंट इन द सर्किट, वाई एक्सिस में ये प्लॉट किया। तो मेरा क्या होगा, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा इस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, करंट शुरू में धीरे 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 बढ़ेगा, एक मैक्सिमम पीक वैल्यू अटेंड करेगा, और फिर जैसे जैसे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाऊंगा तो करंट घटते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करता हूं तो मेरा सर्किट में करंट भी चेंज हो रहा है। सो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए, और दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, दिस इज कॉल्ड ओमेगा आर, इस फ्रीक्वेंसी के लिए मेरा सर्किट में करंट जो है ना, ये कितना हो गया, मैक्सिमम ना। इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे हम, रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इससे कम होगा तो भी करंट कम होगा, इससे ज्यादा होगा तो भी करंट कम हो जाएगा, पर्टिकुलरली इस फ्रीक्वेंसी में ट्यून हो जाएगा। ट्यून हो जाएगा मतलब उस सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और वो प्ले होगा वो स्टेशन, ठीक है। अच्छा, नाउ तो जब रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी में मैं एक LCR सर्किट को ऑपरेट कर रहा हूं, उस समय क्या हो रहा, देखो उस समय पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस VL इक्वल टू I max इंटू द XL मतलब ओमेगा एन, करंट रिजोनेंट, जब रिजोनेंस में आ गया सर्किट तो उस समय करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा, तो उस समय पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टेंस कितना होगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टेंस इनटू द रिएक्टेंस, ठीक है। अच्छा, I max कितना होगा, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो गया, इसका और इसका इंपीडेंस तो कितना हो गया, Z, रिजोनेंस में मेरा Z कितना हो गया, R के बराबर हो गया ना। अप्लाइड EMF मेरा कितना है, E है, तो करंट मैक्सिमम करंट कितना होगा, दिस इज इक्वल टू E बाई R, दिस विल बी द मैक्सिमम करंट अप्लाइड EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू E बाई R। This is E by R into omega L. This is what? Potential drop across inductance. तो VL by R, VL by E, E क्या है, applied EMF, ठीक है, equal to omega L by R. This is a very beautiful equation. See, omega L is more than R. Omega L क्या है, सेल्फ इंडक्शन के कारण जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा टू द फ्लो ऑफ AC, ठीक है। तो ओमेगा एल इज ग्रेटर देन आर, अगर ये ज्यादा है तो VL विल बी ग्रेटर देन E। देखो इसका न्यूमरेटर राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर ज्यादा है
तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस इज मोर देन द अप्लाइड ईएमएफ. दिस इज पॉसिबल इन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. जितना ईएमएफ हमने दिया उससे ज्यादा ईएमएफ इसमें आ गया, इसके अक्रॉस में ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ. इसका मतलब है ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन सर्किट है. ठीक है. अच्छा, ये कितना हो गया? ओमेगा एल बाई आर. ठीक है. सो VL बाई ई इक्वल टू ओमेगा एल बाई आर. अच्छा, ओमेगा एल है कितना? 1/√LC. तो इसको मैं ओमेगा एल की जगह पे √LC लिख सकता हूँ. यहाँ पर एक एल है, यहाँ पर एक आर है. तो √L और एल कैंसिल होके ऊपर में एक रूट आ जाएगा, ए कैंसिल होने से √L. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 1/R √L/C. ये जो फैक्टर है 1/√LC, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस टू द अप्लाइड ईएमएफ. इसको कहा जाता है क्यू फैक्टर और फिगर ऑफ मेरिट. ये क्या है बेसिकली? व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? कुछ आइडिया है व्हाट इज फिगर ऑफ मेरिट? दिस इज कॉल्ड द क्यू फैक्टर और फिगर ऑफ मेरिट. क्या होता है कि जब रेडियो ट्यूनिंग सर्किट में मेरा ट्यून नहीं है तो थोड़ा अगर आजू बाजू का भी स्टेशन का नॉइज सुनाई देता है, बराबर. तो अगर मेरा क्यू फैक्टर बहुत अच्छा होगा तो शार्प होगा, बहुत ही शार्प होगा. ठीक है. लाइक हम लोग बाकी रेडियो चैनल की आवाज शार्पली सुन पाएंगे. बाकी का नहीं, जिसको मैं ट्यून किया उसका. ओके. जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस हो रहा, हाँ. अगर बहुत अच्छा सर्किट नहीं है तो क्या होगा? बहुत नॉइजी होता. तो मतलब आजू बाजू रेडियो चैनल के भी आवाज आएंगे. इट्स नॉट गुड. सर्किट पुअर है. हाँ, सर्किट पुअर है. अगर इसका क्वालिटी फैक्टर अच्छा नहीं है तो ये सब होगा. ना, अगर क्यू फैक्टर को ज्यादा करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा? देखो, रेजिस्टेंस शुड बी लेस, इंडक्टेंस शुड बी हाई and capacitance should be less. So for a good figure of merit, Q factor अगर अच्छा है तो हमको क्या करना पड़ेगा? L को ज्यादा करना पड़ेगा. Inductance should be high and resistance and capacitance should be less. Low. Correct. So this is figure of merit. Similarly, अगर मैं कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप अगर देखूं, VC, this is the potential drop across capacitor, is I into XC. XC मतलब 1/ωc. I कितना हो गया? EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इनटू 1/ωc. ठीक है. सो नाउ दिस इज इक्वल टू VC by E. This is equal to what? 1/R into 1/ωc. Omega is what? 1/LC into C. ठीक है. तो चलो ये एक CC कैंसिल हो जाएगा, इसमें √C हो जाएगा, ऊपर में L आ जाएगा. सेम थिंग 1/R into √L/C. This is the figure of merit, that is the potential drop across capacitor to the applied EMF. Now, अभी Q फैक्टर को स्टडी करने के लिए हम लोग एक और पैरामीटर देखते हैं. उसको क्या कहा जाता है? शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस. व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस? So for varying resistance, है ना, for varying resistance हम क्या करते हैं? ये जो मेरा कर्व है ना, ये वेरी करता है. कुछ कर्व ऐसे होगा, ऐसा. कुछ फ्लैट कर्व है, मतलब ये इसका रेजिस्टेंस जब R1 लिया, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है. रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा? क्यू फैक्टर का वैल्यू कम होगा. ठीक है. ये R2 इज मोर देन R1, R3 इज मोर देन R2, ऐसा है. तो देखो, मैं रेजिस्टेंस खाली चेंज किया और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ मेरा जो वेरिएशन ऑफ करंट है ना, वो चेंज हो गया. अगर मैं ये वाला कर्व कंसीडर करता हूं, तो अगर मैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा पीछे गया ना, फिर भी उतना करंट होगा. थोड़ा सा आगे गया तो भी इतना करंट होगा. मतलब उस टाइप का जो ट्यूनिंग सर्किट है ना,
तुम आगे आजू बाजू घुमाओ लेकिन नॉइज आते रहेगा, मतलब बराबर मैच नहीं करेगा, आजू बाजू का भी पकड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें देखो, अगर इसको देखो थोड़ा सा मैं इतना गया ना तो शार्पली ये डिक्रीज हुआ, देखा इतना कम हो गया करंट। जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा ये किया, ये फ्लैट नहीं है, ये शार्प है। इससे भी ज्यादा अगर मैं शार्प ले लूं ऐसा, ये मोस्ट शार्प है, मतलब करंट फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम क्या किया, करंट ड्रॉप हो गया तुरंत। तो जो ग्राफ ज्यादा फ्लैट है उसमें क्या है, उतना परफेक्ट नहीं है, वो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी के आगे पीछे में जाने से भी मेरा करंट उतना ही रहेगा। लेकिन जो शार्प है, थोड़ा सा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम किया गया, करंट सर्किट में नीचे ड्रॉप हो जाएगा, आगे भी किया तो भी ड्रॉप हो जाएगा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में करंट पकड़ेगा। ओके, ना इसको हम कैसे देखते हैं, मतलब रिजोनेंस का शार्पनेस किससे डिटरमाइन होता है, जो फ्लैट ज्यादा शार्प है वो उसका फ्रीक्वेंसी कम करने से तुरंत करंट घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तुरंत घटेगा। तो इसको कुछ तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होना चाहिए, किस तरह से, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। तो हमने डिफाइन किया फिर कि जिस फ्रीक्वेंसी में जो करंट है सर्किट में वो 1/√2 टाइम्स हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। वाई 1/√2 टाइम्स, देखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है करंट इंटू वोल्टेज। लेकिन ये एसी है, एसी में तो करंट इंटू वोल्टेज इज नॉट पावर बिकॉज देयर इज अ फेज एंगल, है ना। सो करंट इंटू वोल्टेज गिव्स अपरेंट पावर इन एसी। डीसी सर्किट में करंट इंटू वोल्टेज इज पावर, एसी सर्किट में क्या लगता है, करंट इंटू वोल्टेज इंटू कॉस फाई, दैट इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। बट अगर एसी सर्किट को मैं स्टडी करने चाहा तो एसी सर्किट में एक और भी एवरेज करंट, एवरेज ईएमएफ बोल के भी कुछ है, करेक्ट, जिसको हम लोग क्या कहें, ERMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर कितना होता, जो भी मेरा पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है उसका √2 टाइम्स होता है, दिस इज द ERMS ना। एवरेज वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर is given by EP by √2, peak value by √2. Similarly, average value of current is given by IRMS. This is given by IP by √2. और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया RMS इंटू IRMS को, तो √2 by √2 EP into IP, that is equal to give the average power. इसलिए 1/√2 टाइम्स देता है, क्योंकि √2 अगर मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना। दिस इज इक्वल टू EP इंटू IP, EP इंटू IP, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो मतलब पावर जो है हाफ हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, जिस फ्रीक्वेंसी में, अभी मैं इसको हटा देता हूं, अभी नाउ वी विल स्टडी अबाउट sharpness of resonance. Let us try to understand what is sharpness of resonance, how it is calculated. ठीक है, तो डेफिनेशन तो यही है कि जिस फ्रीक्वेंसी में सर्किट में मेरा करंट 1/√2 टाइम्स हो जाता है, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द, चलो इसको मैं ऐसे ले लिया, ठीक है। सो ये मेरा अभी मैक्सिमम करंट हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये मेरा रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिस समय करंट मेरा मैक्सिमम था। शार्पनेस कैसे मैं डिफाइन करता हूँ, देखो ये मैक्सिमम है, तो सपोज इस फ्रीक्वेंसी में, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में मेरा करंट जो है ना, मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया लोअर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैं इस फ्रीक्वेंसी में सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम करंट। सिमिलरली इस टाइप का इतना ही मैग्नीट्यूड वाला करंट मुझे और एक बार मिलेगा जब मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, बराबर ना।
ये हो गया अपर वैल्यू ऑफ हाई वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। इतना फ्रीक्वेंसी होने से भी क्या हो जाएगा, मेरा करंट सर्किट में मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स हो जाएगा। ये जो गैप है ना, ये जो बैंडविड्थ है, इसको कहा जाता है, दिस इज द मेजर ऑफ शार्पनेस। ठीक है, दैट इज ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल। These are called half power frequencies. This width gives the width gives is measure of width is measure of sharpness. कैसे? अगर मान लो ये width ज्यादा है, ये width ज्यादा है, इसका मतलब कर्व मेरा फ्लैट है। कर्व अगर फ्लैट है तो क्या हो जाएगा, width ज्यादा होगा तो इट विल नॉट बी वेरी शार्प। ठीक है, अच्छा जिसमें width कम होगा, मान लो एकदम बहुत ही शार्प ऐसे, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का बैंडविड्थ भी कम होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, द सर्किट विल बी, उसका क्यू फैक्टर ज्यादा होगा, उसका शार्पनेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर LCR सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट है। अच्छा, एक पैरेलल रेजोनेंस सर्किट भी होता है, उसको क्या कहा जाता, रिजेक्टर सर्किट। सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट उसका कनेक्शन ऐसा रहेगा कि वी हैव इंडक्टेंस, वी हैव रेजिस्टेंस एंड वी हैव कैपेसिटर, and they are connected in parallel with the AC voltage source. ये AC voltage source C है, L है, R है। ठीक है, खाली इतना समझने का है कि देखो जब ऐसा होता ना, तो इसमें इंडक्टेंस में क्या होता, EMF लीड करेगा 90 डिग्री में। इसमें क्या होगा, करंट लीड करेगा, C से करंट लीड करेगा, EMF लैग करेगा 90 डिग्री में। तो अगर इस ब्रांच का EMF और इस ब्रांच का EMF देखो, इसमें 90 डिग्री लीड, इसमें 90 डिग्री लैग, तो बोथ विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, द फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, करंट कम होगा, सर्किट में करंट कम हो जाएगा। तो इसका अगर मैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करूंगा ना, तो एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी the current in the circuit will be minimum. This is current versus frequency graph. ठीक है, ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में होता है। तो कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल दिया मैंने कैराओके में। कैराओके में क्या होता है कि इनिशियली सभी म्यूजिशियन, जो सिंगर था उसका भी वॉइस था, बैकग्राउंड म्यूजिशियन जो भी दिया म्यूजिक का सभी आवाज था। ठीक है, बट मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया कि दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंगर, और उसको हमने निकालना है। तो आजकल कंप्यूटर में भी बहुत सारे ऐसे साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर आ गया जिसके थ्रू हम इसको करते हैं। वो क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सर्किट में करंट मिनिमम होगा। तो देयर वर मेनी सिग्नल्स, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सर्किट में करंट मिनिमम होगा मतलब ऑलमोस्ट जीरो होगा, तो उस सिग्नल को हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं। सो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, parallel LCR circuit is considered as a rejector circuit। इसको ऐसे हम फिल्टर यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड एज ए फिल्टर सर्किट। क्लियर? तो जस्ट समराइज करता हूं, LCR circuit is inductive capacitive resistive circuit। okay, now why LCR circuit is used? This is used to get electrical resonance. One of the example of LCR circuit is radio tuning. So series resonance circuit में जब resonance होता है, resonance होना मतलब एक particular frequency of alternating voltage के लिए ये सर्किट मिनिमम इम्पीडेंस ऑफर करता है। उस समय करंट सर्किट में सबसे मैक्सिमम रहेगा, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड दैट इज गिवन बाय omega is resonant frequency is given by root over LC, correct?
अच्छा, देन हमने क्या देखा कि अगर इम्पीडेंस सबसे मिनिमम है ना, सो इन दैट केस क्या हो जाएगा कि करंट विल बी मैक्सिमम. उस समय सर्किट बिहेव्स एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट. ठीक है, एज ए सिर्फ जैसे कि सिर्फ रेजिस्टेंस है उस सर्किट में. अच्छा, फिर हमने देखा कि व्हाट इज क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट. क्यू फैक्टर मीन्स व्हाट, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस इज मोर देन द अप्लाइड ईएमएफ. तो वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन इज टेकिंग प्लेस. करेक्ट. अच्छा, उसमें क्या हुआ, 1/R√LC. तो क्यू फैक्टर को अच्छा करने के लिए, फिगर ऑफ मेरिट को अच्छा करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, इंडक्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, कैपेसिटर कम होना चाहिए. दैट वी हैव सीन. करेक्ट. फिर हमने देखा कि व्हाट हाउ द रिजोनेंस का शार्पनेस कैसे डिटरमाइन होता है. तो हमने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड द करंट. फिर हमने क्या देखा, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में सर्किट में करंट मैक्सिमम है, उसका आगे पीछे दोनों तरफ जाओ तो करंट शार्पली डिक्रीज होता है. जिस सर्किट में करंट थोड़ा सा भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम किया या ज्यादा किया तो बहुत ही ज्यादा डिक्रीज हो गया करंट, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज मोस्ट शार्प एलसीआर सर्किट. ठीक है. तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर किया जाता है, बाय मेजरिंग द हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, जिस फ्रीक्वेंसीज में करंट एलसीएस सर्किट में मैक्सिमम करंट का 1/√2 टाइम्स होता है, उसको कहा जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी. तो मैंने ये भी समझाया कि 1/√2 टाइम्स और हाफ पावर में क्या रिलेशन है, क्योंकि EP/√2 एंड IP/√2 दोनों अगर मल्टीप्लाई करेगा तो पावर विल बी हाफ ओनली. ठीक है. तो दो बार ये फ्रीक्वेंसी अटेंड करता है, एक बार बढ़ते समय और एक बार घटते समय, फ्रीक्वेंसी के साथ जैसे जैसे कम हो रहा. तो दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बीच में जो गैप है, दैट डिटरमाइंस द शार्पनेस. अगर गैप ज्यादा है तो लेस शार्प है, फ्लैट है, ग्राफ इज फ्लैट. और अगर बैंडविड्थ बहुत ही कम है, ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल के बीच का जो डेल्टा डिफरेंस है कम है, तो इट इज वेरी शार्प. ठीक है. फिर हमने देखा कि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट एलसीआर क्या होता है, दिस इज यूज्ड एज ए रिजेक्टर सर्किट. क्योंकि उस समय क्या होगा, करंट in the branch of LR and in the capacitive branch being 180 degree out of phase, cancel each out. ठीक है. तो मेनी सिग्नल में से एक सिग्नल को अगर मुझे रिजेक्ट करना है, सो वी विल यूज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट. क्लियर? एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच.